Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 24 of this playlist dynamic programming, we are going to see last video on this standard problem, that is MCM matrix chain multiplication. Okay, so this will be part 3 of this standard problem और इसके बाद इस वीडियो के जस्ट बाद हम इस स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से MCM से कितना वेरिएशन, कितनी तरह की वेरिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि जनरल में आपको डीपी में मिल जाएंगी, वो सारी प्रॉब्लम्स वन बाय वन देखने वाले हैं. ओके, so but before starting this video, let's just see what is Newton School. So basically, as we all know, Newton School is an e-learning platform which who have designed different programs for you. Like first program they have for you is pay after placement program, under which they will train you for 6 months and they will make you a full stack developer. And not only this, after that they will also get you placed in different companies which they have tie up with, like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, Byju's, and Academy. Okay, so what they do is they will teach you for 6 months, they will make you a full stack developer, and after that they will get you placed for minimum 5 lakh CTC. And most amazing thing about this program is that this is a pay after placement program, under which you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies. Okay, fine. Second thing they have for you is Launchpad initiative, under which if you want to learn or start learning for free, you can just come to newtonschool.co, sign up for free and start learning. There are different courses for you, especially designed by educators. So you will also get certificates after completion of any course, and you can also do quizzes here. You can also participate in coding contests, like there is a section of coding contests also, so you can participate. And if you want to know more about these two programs, that is pay after placement program and Launchpad initiative, just come to newtonschool.co and check their both programs. And main thing you can also see here is that for September batch, application for full stack development course is also open right now. Okay, so you can apply now. Second thing, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go to YouTube and subscribe this channel, where we have different playlists for you, especially designed for you, like for DP, for data structures and algorithms, for C++ from basic to advanced, for JavaScript, and for different frameworks also. Okay, so if you want to check this, just go and bookmark these playlists and follow these playlists. Now let's just start today's video, that is matrix chain multiplication. Fine. Okay, इन मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर रखी है प्रीवियस वीडियो में. ओके, सो मैं ऑब्वियसली वो नहीं करने वाला. मैं ब्रीफ में बताता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है. हमें एक मैट्रिक्स की चेन गिवन होती है, ठीक है, लाइक ये 4 मैट्रिक्स है मेरी, और मुझे सिंपली बताना है मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस टू मल्टीप्लाई ऑल दीज मैट्रिसेस. ठीक है, तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं इन सारी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के. तो मैंने बताया था कि हम रिकर्जन इनिशियली कैसे हम सॉल्यूशन थिंक आउट करते हैं, हम रिकर्जन का यूज़ करते हैं, और कैसे हम सारा का सारा पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं, फिर उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और कैसे हम उसका मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस निकालते हैं जो हमें इन मैट्रिक्स चेन को मल्टीप्लाई करने में यूज़ में आने वाले. ठीक है, फाइन. सो इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड प्रीवियस 2 वीडियोज़, जस्ट गो एंड वॉच दैम. एंड 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बताया था. लाइक A1 और A2 आपकी 2 मैट्रिक्स हैं, इसकी डायमेंशंस A क्रॉस B हैं और इसकी डायमेंशंस अगर C क्रॉस D हैं. तो ऑब्वियसली वी नो दैट इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग 2 मैट्रिसेस टुगेदर A1 एंड A2, एंड सो देयर मस्ट बी इन कंडीशन दैट B will always be equals to C. Okay, so number of operations to multiply these operations will be simply equals to A cross D multiply B, or you can write C here, B or C. Okay, so I simply wrote B here. Okay, so total number of operations to multiply these matrices are this much, and obviously after we perform recursion over this matrix chain, we get total number of minimum operations to multiply all these matrices together. ठीक है, अब हम रिकर्जन का कोड एक बार फिर से देख लेते हैं ब्रीफ में, और उसमें थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं कि कैसे वो हमने रिकर्जन का कोड स्टार्टिंग से लिखा था. ठीक है, फिर इस वीडियो में हमारा मेन एम क्या है, उस रिकर्जन के कोड को मेमोजाइज करना. ठीक है, और मेमोजाइज करने से ऑब्वियसली उसको हम क्या बना देंगे, मेमोजाइजेशन से डीपी का कोड. ठीक है, रिकर्जन में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, हमारे पास क्या होती है, एक्सपोनेंशियल अप्रोच होती है,
और exponential approach, and in recursion we have some overlapping sub problems also, overlapping sub problems, है ना, लाइक कि कोई ऐसी वैल्यूज होंगी जिसका हम रिजल्ट बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं डीपी में, मेमोराइजेशन। हम सब प्रॉब्लम्स का रिजल्ट एग्जैक्टली करते क्या, हम सब प्रॉब्लम्स का रिजल्ट कहीं पर स्टोर कर लेते हैं, और जब हमें उस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट दोबारा निकालना होता है तो हम ईजिली क्या करते हैं, हम उसको वहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसकी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ मैं, कैसे आप ये चीज़ समझ सकते हो, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि ये मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन है, A1 A2 A3 A4, ठीक है, ये 4 मैट्रिसेस हैं। मैंने बताया था कि इसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला ब्रैकेट तुम रखना है, इसमें शुरू करोगे, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, तुम बोलोगे कि मैंने एक पॉसिबिलिटी इसकी है कि मैं इसको ऐसे करूँ, A1 का अकेले ले लूँ और A2 A3 और A4 का करूँ, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है मेरी कि मैं इसको ऐसे करूँ, A1 और A2 का एक साथ कर दूँ और A3 और A4 का एक साथ कर दूँ, ठीक है, फाइन। अब मैं बोलूँ कि अगर मुझे ये फिर से सब प्रॉब्लम मिली, ये तो अकेली मैट्रिक्स है, इसमें मुझे कुछ और सॉल्व नहीं करना, बट इसमें मुझे और सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए मेरी सब प्रॉब्लम्स और कौन सी बनेगी, मैं बोलूँ A2 को अकेले ले लूँ और A3 और A4 को यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का सिंपली मेरे पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे पास सिंपली आ जाएंगे A क्रॉस, ये चीज़ मैं दोबारा नहीं बताना चाहता, फर्स्ट मैट्रिक्स की अगर डायमेंशंस कितनी है, A क्रॉस B है, सेकंड की है C क्रॉस D, तो मेरे पास इन दोनों के नंबर ऑफ ऑपरेशन सिंपली आ जाएंगे कितने, A क्रॉस B क्रॉस D, ठीक है, फाइन। अब मैंने बोला कि मेरे पास इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ ऑपरेशंस थे, ठीक है, और यू कैन से कि इस मैट्रिक्स का भी मैंने यहाँ पे कंप्यूट कर लिया A2 इंटू A3 इंटू A4, ठीक है, और मैंने इस मैट्रिक्स का भी कंप्यूट कर लिया A3 इंटू A4। अब जब मैं इस पॉसिबिलिटी में आऊँगा, रिकर्जन में हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हम रिकर्जन में ये भी एक बार ट्राई कर रहे हैं, इसका कंप्लीट आंसर निकाल के हम इसका आंसर निकाल रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है, और हम रिकर्जन में क्या कर रहे हैं, फिर ये पॉसिबिलिटी भी पूरी गो थ्रो कर रहे हैं, हम पूरी इसका आंसर निकालेंगे और फिर रिकर्जन को अपडेट करेंगे मिनिमम से, रिकर्जन का आउटपुट, है ना। तो एग्जैक्टली तुम देखोगे यहाँ पे कि तुम्हें 2 ओवरलैपिंग सिंपल सी हैं, बट तुम्हें ओवरलैपिंग वाली चीज़ दिख जाएगी यहाँ पे, दैट इज तुम अगेन जब ये वाली पॉसिबिलिटी कंसीडर करोगे तो तुम्हें A3 क्रॉस A4 दोबारा देखा, यहाँ पे देखो A3 क्रॉस A4 और A3 क्रॉस A4 तुम पहले निकाल चुके थे, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर यू कैन सी कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स इसमें बन रही हैं, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन दैट इज MCM, यू हैव ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, तुम कहीं ना कहीं कई सारी वैल्यूज बार बार कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। सो फॉर दिस, फॉर रिड्यूसिंग दीज ऑपरेशंस और इन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को तुम बार बार कैलकुलेट ना करो, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज DP, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग DP, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, एक्सपोनेंशियल, उससे हमें सिंपली क्या मिल जाएगी, पॉलिनोमियल, ठीक है। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मैट्रिक्स का तुम मल्टीप्लाई करोगे, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने की कॉम्प्लेक्सिटी तो n³ ही होती है, लाइक वो पावर 3 रेज 3 ही होगी, ठीक है। तो वो अगर एवरेज केस में देखोगे, एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस नहीं होने वाली, ठीक है, MCM में, बट व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट फ्रॉम दिस MCM DP अप्रोचेस, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर केस के लिए हम मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लाई ऑपरेशंस निकालने वाले हैं, फाइन। अब इसका रिकर्जन समझते हैं, और उस रिकर्जन में कैसे हम इन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को कहीं पर रिस्टोर करके उसको मेमोराइज करके उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी और पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इसका रिकर्जन का कोड है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, फाइन। मैंने ये फंक्शन बनाया MCM, जिसमें मैंने एक P, मैंने बताया था MCM में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको एक एरे मिलेगी, I और J सिंपली मैंने ये सारी चीज़ें रिकर्जन का कोड भी प्रीवियस वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था, तो इफ़ यू हैवंट वॉच जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब I मैंने बताया था कि ये अगर तुम्हारी एक एरे है, ठीक है, इस कंप्लीट एरे में तुम्हें कैसे अपनी मैट्रिक्सेस की डायमेंशन गिवन होगी, अगर ये एलिमेंट्स हैं, सपोज मान लो 1 2 3 5 10 7 8, तो मैट्रिक्स की डायमेंशन कैसे मिल जाएंगी तुम्हें,
फर्स्ट मैट्रिक्स की डायमेंशन चाहिए, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 0, ए ऑफ आई एंड ए ऑफ आई माइनस 1, ये फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स की डायमेंशन, थर्ड फोर्थ मैट्रिक्स की डायमेंशन, इस तरह, ठीक है, सिंपल सी चीज़। तो आई और जे सिंपली तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर आई एंड दिस विल बी योर जे। तुम्हारा पूरी की पूरी कंप्लीट एरे के लिए अगर तुम रिजल्ट निकाल रहे हो, अब यहाँ से तुम एक चीज़ समझना कि तुम कैसे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन जो तुम्हारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तुम कैसे लिंक करने वाले हो उसे अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम से, तुम कैसे उसकी जो वेरिएशंस हैं उन प्रॉब्लम्स को समझोगे। तो एग्जैक्टली तुम्हारे पास होगा क्या, तुम्हारे पास कोई एक सिंगल एरे गिवन होगी, ठीक है, और तुम्हें उसमें पार्टीशंस करने होंगे, ठीक है। इसलिए जो एमसीएम की वेरिएशंस की प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें तुम पार्टीशन डीपी प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे देखो कि मैं जो मेरे पास एक रेंज है आई और जे, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ठीक है, इस पूरी की पूरी एरे का, और मैंने एग्जैक्टली क्या किया, मैंने इन दोनों के बीच में सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी पार्टीशन करने की। मैंने एक बार ब्रैकेट यहाँ पे लगाया, एक बार यहाँ पे लगाया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बेस केस एक डाला, दैट इज़ आई इज इक्वल्स टू जे। ये बेस केस कब है, जब आई इज इक्वल्स टू जे हो जाएगा, जैसा कि ऐसा हो गया, मान लो आई भी यहीं पर है, जे भी यहीं पर है, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि ये वाला जो केस हो जाता है, आई की जो मैट्रिक्स बनी वो बन जाएगी तुम्हारी ए आई और ए आई माइनस 1, जे की जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी सेम बन जाएगी, ए आई और ए आई माइनस 1। तो ऑब्वियसली दो मैट्रिक्स का हमें साथ में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि एक मैट्रिक्स तो मेरी ये है और सेकंड मैट्रिक्स में मेरे पास कुछ नहीं है, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई सिंपली क्या हो जाएगा, जीरो, दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग जीरो है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने के लिया, के फॉर इटरेटिंग बिटवीन आई एंड जे, एंड देन मैंने अपना मेन आंसर लिया जो मैं एज अ रिजल्ट आउटपुट में देने वाला हूँ, ठीक है, फाइन। फिर मैंने एक काउंट ले लिया, काउंट इज फॉर फाइंडिंग आउट करेंट वैल्यू ऑफ करेंट पार्टीशन, वैल्यू ऑफ करेंट पार्टीशन। फिर मैंने के आई से जे तक इटरेट किया, और मैंने ये ऑलरेडी बता दिया था क्यों मैंने लेस देन जे तक इटरेट किया। फिर से एक बार बता देता हूँ, सपोज ये मेरी अगर कंप्लीट एरे थी, मैंने बोला आई यहाँ पे था मेरे पास और जे यहाँ पे था, ठीक है। अगर मैं के को यहाँ तक ले आऊँ, जो कि अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, फाइनल जो मेरा मेन कोड है, मैं तुम्हें कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा हूँ, अगर मैं के को यहाँ तक ले आऊँ तो मेरी जो कंप्लीट मैट्रिसेस थी वो ये बन जाएंगी, ये पूरी की पूरी फर्स्ट पार्टीशन में चली गई, पार्टीशन 1, सब प्रॉब्लम 1 में चली गई। सब प्रॉब्लम 2 में मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स नहीं बची, और पार्टीशन 2 में, तो यू कैन से कि अगेन यहाँ पे ये केस इनवैलिड सा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे जो पार्टीशन करना है टोटल मैट्रिसेस 4 मैट्रिक्स हैं, अगर A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो एटलीस्ट दो पार्टीशन या दो सब प्रॉब्लम में दोनों में एटलीस्ट एक मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, ऑब्वियस ही चीज़ है। दैट्स वाई के जो है वो लेस देन जे तक ही जा रहा है, ठीक है, रेंज में। फिर करंट सब प्रॉब्लम का आंसर मुझे कैसे निकालना था, ये मेरी कंप्लीट प्रॉब्लम है, इसका मैंने आई से के तक फर्स्ट सब प्रॉब्लम बनाई, के प्लस 1 से जे तक सेकेंड सब प्रॉब्लम बनाई। अब मुझे इन दोनों का सेपरेट आंसर निकालना होगा, तो मैंने रिकर्जन फंक्शन कॉल किया, एमसीएम ऑफ एरे सेम जाएगी आई टू के, ठीक है, एंड सेकेंड सब प्रॉब्लम के लिए फ्रॉम पी सेम जाएगा के प्लस 1 टू जे, ठीक है, फाइन। अब इन दोनों सब प्रॉब्लम से मैंने बताया था कि तुम्हें एक एक फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी, दैट विल बी सपोज ए डैश एंड ए डबल डैश, और तुम्हें इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करने के भी कुछ नंबर ऑफ मल्टीप्लाई ऑपरेशंस मिलेंगे तुम्हें, और वो चीज़ तुम सिंपली कैसे निकाल देते हैं, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू और kth इंडेक्स वैल्यू। इसका मैंने कंप्लीट लॉजिक बताया था, अगर तुम्हें देखना है तो जाओ और प्रीवियस वीडियो में देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सिंपली क्या मिल गया, p ऑफ i माइनस 1 दैट विल बी फर्स्ट वैल्यू, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है उसके जस्ट पहले वाली वैल्यू वही होगी तुम्हारी फर्स्ट वैल्यू, देन लास्ट वैल्यू दैट विल बी योर राइट हैंड वैल्यू, एंड पी के जो तुम्हारी पार्टीशन वैल्यू है, जो तुम्हारा मतलब जहाँ से तुम पार्टीशन करो वो वैल्यू, ठीक है। और अगर करंट
पार्टीशन की जो वैल्यू है वो लेस देन है तुम्हारे फाइनल आंसर से, तो उसको अपडेट कर दो, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा रिकर्जन हो गया। अब हमें इसे मेमोजाइज करना है। मेमोजाइज की मैंने सबसे पहली चीज़ बताई थी, तुम्हें फर्स्टली ये सिलेक्ट करना होता है कि तुम्हें जो रिजल्ट तुम निकाल रहे हो वो स्टोर कहाँ पे करना है। स्टोर कहाँ पे करोगे ये देखते हैं, कैसे स्टोर करोगे। अपना फंक्शन देखो, उसमें चेंजिंग वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। एरे जो पी है, पी एरे क्या बार बार चेंज हो रही है? देखो तुम कहीं भी रिकर्जन फंक्शन में अपनी एरे चेंज कर रहे हो? नहीं, उसके तुम्हें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आई और जे चेंज हो रहे हैं? यस, आई और जे चेंज हो रहे हैं मेरे। देखो यहाँ पे सिंपली रिकर्जन फंक्शन, आई तो चेंज नहीं हुआ बट जे चेंज हो गया। सब प्रॉब्लम 1 के लिए जे चेंज हुआ, हाँ हुआ। सब प्रॉब्लम 2 के लिए देखो आई चेंज हुआ, हाँ हुआ। तो यू कैन से कि मेरे पास ऐसी 2 वैल्यूज़ हैं जो मेरे चेंजिंग वेरिएबल्स हैं। तो मैं बोलूँगा कि मुझे एटलीस्ट 2D स्ट्रक्चर चाहिए स्टोर करने के लिए। और 2D स्ट्रक्चर में वी सिंपली से कि मैं एक डीपी एरे बना लेता हूँ, 2D डीपी एरे बना लेता हूँ, ठीक है। 2D डीपी एरे में आई विल से कि आई और जे में मैं क्या स्टोर कराऊंगा, सिंपली जो कंप्लीट फंक्शन है मेरा वो मुझे क्या दे रहा है, सिंपली करंट स्टेट का आंसर दे रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस सच दैट मैं अपनी एरे में फ्रॉम आई टू जे मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लाई ऑपरेशंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो डीपी ऑफ आई जे में मैं वही स्टोर करूँगा, फाइन। अब मैंने ये निकाल लिया कि मुझे आंसर स्टोर कहाँ पे करना है हर सब प्रॉब्लम का। अब बस 2 स्टेप्स लिखने हैं मुझे, जहाँ जहाँ पे कोई भी नई वैल्यू कंप्यूट हो रही है उसके आगे उसको स्टोर कर दो। और फर्स्टली सबसे पहले अपने रिकर्जन फंक्शन में एक बार चेक कर लो कि कहीं वो वैल्यू तुमने ऑलरेडी निकाल तो नहीं रखी, ठीक है। तो इफ़ आई इज इक्वल्स टू जे, सिंपली मैं यहाँ पे अब तुम लोगों को कोड लिख के ही दिखा देता हूँ, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे आए और इसको हमें जस्ट मेमोजाइजेशन में बदलना है। तो मैं सबसे ऊपर सबसे पहले डीपी एरे बना लेता हूँ। तो मैंने डीपी एरे बनाई ऑफ ऑब्वियसली ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न 0, तो इसको भी ऑब्वियसली मैं स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने स्टोर भी कर लिया और रिटर्न भी कर दी वैल्यू। अब मैं अंदर आया सिंपली, और मुझे एक चीज़ यहाँ पे इसके बाद क्या चेक करनी है। मैंने बताया था कि डीपी एरे को तुम सबसे पहले इनिशियलाइज किससे करते हो, इनिशियलाइज उससे करो जो तुम्हारी नॉट पॉसिबल वैल्यू है। इस पूरे फंक्शन में तुम्हारा एक वैल्यू ऐसी निकालो जो तुम्हारी इसका आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एग्जैक्टली आ क्या रहा है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मल्टीप्लाई अ चेन ऑफ मैट्रिक्स। उसका आंसर नॉट पॉसिबल सबसे ज़्यादा क्या है, -1। क्या कभी भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस -1 आ सकते हैं? 0 आ सकते हैं, 0 मत लेना, ठीक है, बट -1 कभी नहीं आ सकते। तो तुम सिंपली क्या करो, मेमसेट का यूज़ करके -1 से इनिशियलाइज कर दो। अब तुम सिंपली चेक करो करेंट स्टेट की वैल्यू डीपी ऑफ आई जे क्या तुमने ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा है। अगर -1 के इक्वल नहीं है तो तुम यहीं पे सिंपली करेंट रिकर्जन फंक्शन की वैल्यू कैसे रिटर्न कर दोगे, डीपी ऑफ आई जे, ठीक है। और अगर कंप्यूट नहीं कर रखा तो तुम्हें क्या करना है, अब डीपी ऑफ आई जे का रिजल्ट स्टोर करना है। तो डीपी ऑफ आई जे का रिजल्ट स्टोर करने के लिए तुम सबसे पहले क्या करो, डीपी ऑफ आई जे को इनिशियलाइज कर दो इंट ऑफ मैक्स से, क्योंकि तुम डीपी ऑफ आई जे में स्टोर क्या कर रहे हो, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो तुम जब अंदर आओगे करंट प्रॉब्लम की वैल्यू बार बार अपडेट करोगे, तो फर्स्ट टाइम जब वो वैल्यू अपडेट होगी तो प्रीवियस वैल्यू उससे ऑब्वियसली ज़्यादा होनी चाहिए। तो इंट मैक्स भी कभी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, लाइक करेंटली जो हम देख रहे हैं। दैट्स वाई मैंने इंट मैक्स से अपडेट किया, ठीक है। अब तुम्हें सिंपली आना है, तुमने करंट स्टेट का आंसर निकाला काउंट में, और सिंपली लिख दो डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ उसकी प्रीवियस वैल्यू जो भी है एंड काउंट। बस ये चीज़ तुम्हें बाकी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड एंड में ऑब्वियसली तुम क्या रिटर्न कर दोगे, डीपी ऑफ आई एंड जे। तो इजी सा मेमोराइजेशन है। तुमने क्या किया, करंट स्टेट की वैल्यू निकाली और उसको जो भी तुम्हारा फंक्शन था उस पर स्टोर कर दिया। फंक्शन की जो भी स्टेट थी दैट इज आई जे, तो तुमने डीपी ऑफ आई जे में स्टोर कर दिया और एंड में तुमने वही रिटर्न कर दिया। सो इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड इन फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोस वी विल सी वेरिएशन ऑफ दीज MCM प्रॉब्लम्स, ठीक है। और काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, और ये लाइक डीपी में
थर्ड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल दैट इज कोड किचन न्यूटन स्कूल, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल इन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड नैपसैक प्रॉब्लम्स, उसकी सारी वेरिएशन प्रॉब्लम्स जो भी थी। फिर उसके बाद हमने LCS पढ़ा, LCS की जितनी भी वेरिएशन प्रॉब्लम्स बन सकती थी सारी पढ़ी। फिर हम अब MCM की वेरिएशन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड प्लस if you haven't visited newtonschool.co, just go and visit this and check their pay after placement program, and enrollment is also open right now, so enroll for their full stack development course if you want to get placed for minimum 5 lakh CTC, and if you haven't checked their launchpad initiative, just go and check that. Thank you guys for watching.